এই এই আমার ওয়াইফের কেস, হ্যাঁ? এই মানে একদিন রাত্রিবেলা কিছুদিন হয়ে গেছে, 10-12 বছর হয়েছে। হুম? রাত্রিবেলা চেস্ট পেন শুরু হয়ে গেল। আর নিঃশ্বাস নিতে না খুব অসুবিধা হচ্ছে। একদম শুয়ে রাত্রিবেলা এই এই 1:30 হবে। হবে। একটু মানে এরকম করে আমি শুনে কোথায় যাবো, কি করবো, এটা আমিও ভাবতে একদম অসুবিধায় পড়ে গেছিলাম। पेन शुरू हो जाती है, सांस लेने में भी तकलीफ हो। एकदम घबराए কি হয়েছে, একদম মানে শ্বাস হয়ে যাচ্ছে, শ্বাস নিতে পারছি না, এই অবস্থা। কিছু করেন, হুম, कुछ करो। एकदम से घबराने लगी और बोली कुछ करो। খুব আর রাত में डॉक्टर আর ওই সময় ডক্টর মন্ত্রীকে ফোন করলাম, উনি কিছু ওষুধ বললেন, এটা এই অবস্থা, উনি কিছু ওষুধ বললেন কিন্তু কোনো রিলিফ হলো না। তাহলে আমি নিজেই ভাবলাম, জাস্ট ওই সময় আমি স্টার্টই করছিলাম, বেশি আমরা রুব্রিক জানতাম না। তাহলে ওই আমি স্টামিনিয়াম 30 বাড়িতেই রাখি কিছু মেডিসিন, দরকার মেডিসিনগুলো আছে দিলাম। দেওয়ার পর ৫-১০ মিনিট হতে আমরা ওই যে বারবার বলছিল যে कुछ करिए, एकदम सांस नहीं लिया जा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, सांस रुक जाएगा। ওই যে ভয়টা ছিল, ফ্রাইটনিং যে কন্ডিশনটা, clinging children you frightened easily, knows no one and cling to those near, ঠিক আছে? তো এই রুব্রিক অ্যান্ড delirium crying for help, এই কিছু কিছু রুব্রিক জানতাম। delirium crying for help, fear dark thoughts, হ্যাঁ, আর হেল্পলেসনেস ফিলিং, এইসব আমি জানতাম। আর আমি কিভাবে করতাম স্টার্টিংয়ে, কি যখন পেশেন্ট সবকিছু কেন delirium crying for help, তাহলে পেশেন্ট নিজেই ট্রাই করে অন্য ডাক্তারকে দেখায়। যখন আসতো আমি একটা সেট আপ করে দিচ্ছিলাম, সবকিছু করে যখন আসতো সব তো তাহলে আমি না আপনি স্টামিনিয়াম এই আমি একটা মনে সেট আপ ছিল যে সব তো সব জায়গায় তো ট্রাই করে নিয়েছে, এখন কি আছে, এখন তো अभी तो इसका ये है कि अब मेरे को सब जगह से मैं हार गया, अब आप मेरे को ठीक करो, ऐसा सोच के ম্যাক্সিমাম টাইম আমি এরকম একটা সেট আপ করে নিয়েছিলাম, কি এরকম করবে পেশেন্ট, এরকম সব জায়গা থেকে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে দেখবে, আর তাহলে আমি এটা এই ওষুধটা দিই। আর এটা কাজও করতো, এরকম নাই যে কাজ করতো না। এটা এটা আমি সেট আপ মাইন্ড আমি নিজের মাইন্ড সেট আপ করে নিয়েছিলাম। যেরকম বেলাডোনা আসলে লাফিং স্পিকিং ব্রেন, ফ্রিভুলাস, ক্রেডুলাস, হ্যাঁ? আর নাইভের মিনিং অত ভালো করে জানতাম না। নাইভ মিনিং আমি ভাবতাম যে এটা ওই সোজা লোক, কোনো কিছু বললেই মেনে নেয়। কিন্তু ধীরে ধীরে যখন বুঝলাম যে নাইভ কিরকম হয়, ওইটা ওই বেলাডোনার নাইভটা আলাদা। নমস্কার। বেলাডোনার নাইভটা আলাদা, স্টামিনিয়াম নাইভটা আলাদা। এটা ভালো ধীরে ধীরে প্র্যাকটিস করতে করতে এটা বুঝা গেল কি এই নাইভটা কিরকম হয়। এটা আমি আগে বলে দিয়েছি নাইভ, বেলাডোনার নাইভ কিরকম হয় আর স্টামিনিয়াম নাইভ কিরকম হয়, এটা বলে দিয়েছিলাম।
না ওটার নাইবের জন্য কেস বলবো? না ওটা হয়ে গেছে, ঠিক আছে। वाइफ की मुझे खुद तकलीफ हो गई, उठ कर बैठ जाती, फिर लेट जाती, चेहरे पे एक अजीब तरह का घबराहट, और कि अंदर क्या चल रहा, চেস্ট পেন, শ্বাস নিতে অসুবিধা হচ্ছিল। এই রাত্রিবেলা 1:30-2টার সময়, আর অনেক দিন হয়ে গেছে, 10-15 বছর হয়ে গেছে। আর ওই সময় আমি বেশি জানতাম না। স্টামোনিয়াম জানতাম যে স্টামোনিয়াম এই অবস্থায় দেওয়া যায়, তাহলে আমি নিজে দিয়েছিলাম। আর 10 মিনিট মধ্যে স্টামোনিয়াম 30 দেওয়ার পর একদম ঠিক হয়ে গেছে, আমরা ভালো করে ঘুমাই যায়। কিন্তু ওই যে আধ ঘন্টা যে সময়টা খুব খুব কষ্টদায়ক, খুবই কষ্ট, মানে एकदम सांस নিতে পারছিল না ভাই, এরকম। তাহলে চেহারে पे एक तरह से घबराहट कि अंदर क्या चल रहा है, কি হচ্ছে আমার ভিতরে। পরে যখন আমরা ধীরে ধীরে আমি যে এই পড়াশোনা বেশি করেছি, স্টার্ট করেছি, তাহলে বুঝতে পারলাম যে মানে আমাদের ভিতরে কি চলছে। ভিতরটা মানে ডার্ক সাইড মানে কি ও জানতে পারতেছে না কি এইখানে কি হচ্ছে, আমার আমার কি হচ্ছে, আমাকে কি হচ্ছে। এই হচ্ছে ডার্ক সাইড মনে, মানে ও জানে না যে আমার কি, আমার মানে কি রোগটা কি, আমার ডিজিজটা কি, কেন আমার এরকম হচ্ছে। হুম? अंदर क्या चल रहा है, क्या हो गया है मुझे, क्यों इस तरह से दर्द हो रहा है, और सांस रुक रही है, या सांस लेने में असुविधा हो रही है, क्यों हो रहा है ऐसा, কেন হচ্ছে আমার এইসব, ব্যথা হচ্ছে, শ্বাস নিতে অসুবিধা হচ্ছে, কি চলছে এখন, यहाँ पर क्या हो रहा है यह पता नहीं, यहाँ এখানে কি হচ্ছে এই জানে, কি হচ্ছে আমার, কেন দেখা যাচ্ছে না, বাইরে থেকে তো কিছু বোঝা যাচ্ছে না যে কি আছে। और यह उसके लिए স্ট্রেঞ্জ সিচুয়েশন, এইটা স্ট্রামোনিয়ামের পেশেন্ট জন্য स्ट्रेंज सिचुएशन আছে, ঠিক আছে। मैंने पूछा भी कि डिनर में क्या खाए थे, बोली सब लोग जो खाया वो मैं भी खाई, আমি ভাবলাম যে গ্যাস হতে পারে। আমি রাত্রিবেলা কি খেয়েছো, রাত্রিবেলা যে বাড়িতে আমরা সব নিজের বাড়িতে পাটনা গেছিলাম, হ্যাঁ মানে সবই লোক আসছে, যখন আমরা যাই সবাই অনেক লোক চলে আসে, বোন আছে 3টা, 2টা বোন ওখানেই থাকে, ওরা চলে আসে, আর ভাইগুলো চলে আসবে, কেউ না কেউ চলে আসে, তো আমরা বেশি জন হয়ে যাই, তাহলে একটু ভালো লাগে। ওই ভাবলাম, তো বলছে না सब जो खाया हो আমিও খেয়েছি। नहीं समझ में आ रहा है, पर यहाँ पर हम जो रूब्रिक्स अप्लाई करेंगे, ঠিক আছে, আমরা যে রুব্রিকটা নিব, এই যে কি হচ্ছে, কেন ব্যথা করতেছে, হ্যাঁ, আর কেন শ্বাসটা আমি নিতে পারছি না, এই যে ফ্রাইটেন সিচুয়েশন আছে, ভয়ের একটা সিচুয়েশন, ওইটার জন্য রুব্রিকটা নিলাম অ্যাংজাইটি ডার্কিং, ঠিক আছে। আর ফিয়ার ডার্ক অফ एंजाइटी, स्ट्रेंजर इन द प्रेजेंस ऑफ, स्ट्रेंजर की अननोन और स्ट्रेंजर में फर्क क्या है। अननोन में क्या होता है, आप आपका पड़ोसी है, आप उसका नाम नहीं जानते, ठीक है ना, आपके पड़ोस में आसपास में रोज मिलता है, लेकिन आप उसका नाम नहीं जानते, ठीक है, वो होता है अननोन। और स्ट्रेंजर क्या होता है, जिसको आपने पहले कभी देखा ही नहीं है, ठीक है, वो स्ट्रेंजर होता है, जिससे आप कभी पहले मिले नहीं, उसको स्ट्रेंजर, ठीक है। तो इस तरह का सिचुएशन कभी पहले आया नहीं वाइफ के लिए, ठीक है, ठीक है सर। तो आप कभी आप जिस आदमी से मिले नहीं, जिसके बारे में जानते नहीं है, वो होता है स्ट्रेंजर। और अननोन क्या होता है, हा? जो आप रोज देख रहे हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में रहता है, लेकिन आप उसका नाम नहीं जानते, तो क्या बोलते हैं आप, नहीं रहते तो हैं यहाँ पे, लेकिन मेरे को नाम नहीं,
ठीक है? ऐसे करके हम लोग बोलते हैं ना, हाँ, मैं देखता हूँ, यहीं पे रहते हैं, यहीं घर है उनका, उनके बच्चे हैं, ऑफ़िस में सुबह निकल के ऑफ़िस जाते हैं, उनकी वाइफ़ है, 2 बच्चे हैं। ये सब चीज़ है, सब पता है, लेकिन आप उसका नाम नहीं जानते, बस। ये आपके लिए अननोन है, आप देखते हैं उस चीज़ को। पर स्ट्रेंजर में क्या होता है, आपने कभी देखा नहीं है, फर्स्ट टाइम आप मिल रहे हैं उससे, तो वो आपके लिए स्ट्रेंजर। तो यहाँ भी सिचुएशन ऐसा ही है कि इस तरह का सिचुएशन पहले कभी नहीं हुआ। तो ये सिचुएशन उसके लिए स्ट्रेंज सिचुएशन। एंग्जायटी स्ट्रेंजर इन द प्रेजेंस ऑफ, घबराहट हो रहा है, हाँ, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मतलब क्या, ये स्ट्रेंज सिचुएशन अभी फिलहाल मेरे लिए शुरू हो गया। तो हम प्रेजेंट कंडीशन के लिए इस तरह से लेंगे, स्ट्रेंज सिचुएशन। और फियर, स्ट्रेंजर ऑफ, अंदर मतलब क्यों मेरे को ऐसा हुआ? उसका भी डर लग रहा है, एंड लाइट डिजायर, क्यों हुआ मेरे को ऐसा? कुछ करो मेरे लिए, मेरे को बचाओ। इसकी सिचुएशन से मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मेरे को बहुत दिक्कत हो, ठीक है ना? तो ये सिचुएशन, ऐसे ही एक पेशेंट आया था, उसका गॉल ब्लैडर स्टोन है, करीब एक 17 mm का और एक 14 mm, और वेट घट के खाना नहीं खा रही है, बोलती है कि एक रोटी भी मुश्किल से खा पाता हूँ, बड़ी मुश्किल से एक रोटी, इच्छा ही नहीं होती है खाने, एक रोटी खा लो दिन भर चल जाता। और उसका वेट कम होते ना 25 kg हो गया। तो किसी ने उसको बताया कि जाओ उस डॉक्टर के पास, और जब एलोपैथ डॉक्टर के पास गई, जब टेस्ट रिपोर्ट भी लेके आई, बोली कि डॉक्टर साहब देखिए ये रिपोर्ट है, और डॉक्टर ने बोला तुरंत ऑपरेशन करने के लिए। तो मैं बोला फिर, तो पूछा उसको कि क्या सोच रहे हैं? तो डॉक्टर साहब, ऑपरेशन से डर लग रहा है। बोला क्यों डर लग रहा है? तो बोला कि सर, कहीं ऑपरेशन टेबल पे ही ऑपरेशन में गया और टेबल पे ही कुछ हो गया तो ये जो फियर डेथ होगा, ठीक है, ऑपरेशन टेबल, उसका बोलने का मतलब यही है कि ऑपरेशन में गए और टेबल पे ही मौत हो गया, तो वो डर अंदर से, ठीक है। तो वो सिचुएशन है कि भाई ऑपरेशन फियर इंजरी तो है, लेकिन यहाँ मेन क्या है, ये जो ऑपरेशन मरने का डर, वो मरने से बचने के लिए वो मेरे पास आए। फिर मैंने उसको स्ट्रामोनियम 6 दिया, ठीक है। वो दूसरे दिन भागी भागी आई, मैं बोला क्या हो गया? बोली डॉक्टर साहब, रात रात में दवा लेके गई थी, दवा खाई, खाना वाना खा के दवा खा के सो गई। रात में अचानक से ऐसे हुआ कि यहाँ पे लग रहा था कि डब्बा में एक पत्थर रख के और उसको ऐसे खट 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 करते ना, वैसा मेरा यहाँ पे हो, अंदर में वो खट 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 आवाज हो रहा, वो बाल बेड़ा के अंदर वो दोनों टकरा रहा था उसका पत्थर। उसके बाद बोली कि सुबह, लेकिन ना जब सुबह उठी हूँ तो मेरे को अच्छा लग रहा था दोस्त, और मेरे को इतना भूख लगा कि मैं 8-10 रोटी खा गई, ठीक है। उसके बाद से उसको दोबारा वो खटखट वाला सिचुएशन नहीं हुआ, और 1 हफ्ता में उसका वजन 25 किलो से 49 हो गया। बोली डॉक्टर साहब, इतना भूख लगता है मेरे को, 10-15 रोटी तो मैं ऐसे ही खा लेती हूँ, क्योंकि वो जो ब्लॉक हो रहा था उसका बाइल, वो थोड़ा वहां से ब्लॉकेज हट गया। और 1 हफ्ता बाद आके बोली कि डॉक्टर साहब, सोच रही हूँ ना कि ऑपरेशन करा ही लूं। मैं बोला हाँ करा लो। बोले हाँ करा लूंगी, क्योंकि उस समय क्या हो रहा था उसके साथ, 25 kg वजन है, क्या होगा, ऐसे डरा हुआ है, इतना दुबला पतला, इतना कमजोर आदमी, दिमाग में तो डर रहेगा ना बेटा, कि ऑपरेशन के लिए जाएंगे और वहीं पे ऑपरेशन करते करते ही दम ना निकल जाए। वो उसको ये सब पता नहीं है, अनपढ़ महिला है।
कि भाई कमजोरी होने से ऑपरेशन नहीं होता है या वो सब चीज। और जैसे जैसे उसमें स्ट्रेंथ आता गया, अब जस्ट डबल हो गई ना, 25 kg से 49 kg हो गई, तो शरीर अच्छा लगने लगा होगा, मजबूत हो गया, ताकत आ गया, हिम्मत आ गया। तब बोलती है कि डॉक्टर साहब सोच रही हूँ कि ऑपरेशन करा ही लूं। जरूर कराओ, क्यों नहीं कराएगा। और वो जाके उसने ऑपरेशन करा लिया। ठीक है। तो ये सिचुएशन कि मैं कहीं ऑपरेशन थिएटर में ही जाते, मैं ऑपरेशन करते करते ही ना मेरा जान निकल जाए या मैं मर ना जाऊं, ये डर, ठीक है, फियर डेथ। और मेरे पास किस लिए आई है, तो डॉक्टर ने बोल दिया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो ऑपरेशन से बचना है, तो डॉक्टर साहब मेरे को आप ठीक करिए। तो यही है कैरी डिजायर टू बी कैरी शोल्डर ओवर। अब आप, मैंने आपको अब आपके हवाले कर दिया अपने आप। अब आप मेरे को इस सिचुएशन से निकालिए, और कैसे, वो जो आप करेंगे वो मंजूर, जैसे भी, मैं अपना कुछ एफर्ट नहीं डालने जा रही हूँ। तो कैरी डिजायर टू बी कैरिड शोल्डर ओवर का यही मतलब है कि पेशेंट सब कुछ छोड़ देता है, वो अब वो डॉक्टर पे पूरा डिपेंड हो जाता है, वही है क्लिंगिंग। ठीक है। तो डॉक्टर पे डिपेंड हो जाना, वो वो उसका सिचुएशन को पता कि बस अब आप मेरे को अपना कंधे पे लेके चल, मतलब अब आप जो करेंगे वही मेरे को मंजूर है। मेरे पास दम नहीं है कि मैं इससे लड़ सकूं या मैं चल सकूं, इस सिचुएशन में अपने आप को चला सकूं। तो आप मेरे को, ये केस हो गया। ठीक है ना। अभी एक लड़के का केस बताया था, उसका प्रोस्टेट से प्रोस्टेट फ्लूइड निकलता है, বলেছিলাম এই কেসটা? বলে নাই না? এই 22-23 ইয়ার্স হবে, খুব স্মার্ট ছেলে, দেখতেও খুব ফর্সা, খুব ভালো বডি। হ্যাঁ, আসছে আর বলছে, স্যার আমি এই ইউরিন করার পর আর পায়খানা করার পর এই না পেনিস থেকে এ ১-২ ড্রপ জল মতন একদম চিকনা, চিকনা জল মতন বেরিয়ে যায়। এটা ইউরিন করার পর। কেন ইউরিন করার পর এরকম কেন? বলবে যে স্যার পেশাব করবো যখন, ওই সময় লাগবে যে কিছু আটকে আছে। তাহলে আমি জোর দিব, তাহলে ওই ১-২ ড্রপ মতন একদম ফিসলা ফিসলাটা গাঢ়া, গাঢ়া বলবে, সাদা সাদাটা বের হয়। और पायखाना करार पर भी এরকমই লাগে। পায়খানা करने के बाद ऐसा ही लगता है कि थोड़ा-सा रह गया, তাহলে আমি একটু ফোর্স করব, ফোর্স দিব, তাহলে আবার ওইটা বেরিয়ে যাবে। তো এইটা আমার ৭-৮ বার হচ্ছে স্যার দিনে। সকালে একবার হয় আর পেশাব করার পর য যখনই পেশাব করব ওই সময় হয়। স্যার এটা কি হচ্ছে? কোনো ভয়ের কারণ তো নাই। মানে একটা ফ্রাইটনেস ছিল ওর মুখের উপর। আর কোনো ভয়ের কারণ তো নাই। এই কথাটা বলল। স্ট্রামোনিয়াম দিয়েছি 30, আর তাহলে নেক্সট ডে বলছে, एकदम फोन করেছে नेक्स्ट डे। मतलब क्या हो गया? बोलছে सर आज तो हुआ, आज भी हुआ है ऐसा, लेकिन उतना बार नहीं हुआ है, अब 4-5 बार ही हुआ है, 1-2 बार में कभी पेशाब करने में या लैट्रिन में नहीं हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करो, देखते हैं धीरे-धीरे। वो दवा है ना, प्लेसिबो खाते रहो। আবার নেক্সট ডে করেছে, স্যার আজ ৩ বার हुआ। আবার করেছে নেক্সট डे। এরকম করে করে না ১ সপ্তাহ পর বলছে, স্যার आज नहीं हुआ और दवाई लेना है क्या? तो मतलब क्या है? यहाँ पे যখন ঠিক হয়ে গেছে, হুম? যখন ঠিক হয়ে গেছে, তাহলে নেচারটা কি হয়ে গেছে? ফ্রিভুলাস। और दवाई लेना है क्या স্যার? ফোন করে জিজ্ঞেস করতেছে। যখন ঠিক হয়ে গেল, এইটাই হচ্ছে ন্যামনেস। আবার কিছুদিন পর না এই ছেলেটা আসে। কিছু গন্ডগোল করেছে, তাই জন্য এটা হয়েছে। ওই সেম গন্ডগোলটা করে আসবে।
এইটা হচ্ছে ন্যাভনেস অফ স্ট্রাং। সেম ভুল করে, যে ভুল করলে ওর মানে ডিজিজটা বেড়ে যায় না, কোনো অসুবিধা হয়ে যায়, ওই সেম মানে পিছনে যে করেছে ওর থেকে শিখে না এই স্ট্রামানি অফিসে। তাই জন্য এটা এই রুব্রিকটা হবে যে ভুল করেছে, পিছে যে ভুল করার পর ওর ডিজিজ হয়েছে না, শরীরে কোন অসুখ হয়েছে, ওই দুধটা আবার করবে। আর ওইটা এসে আর বলবে স্যার, স্যার সমস্যা খেয়ে নিয়েছিলাম স্যার, আমার এখন ঠিক হয়ে গেছিল তো ভাবলাম আচ্ছা খেয়ে দেখি একবার। ঠিক আছে? আর এই ছেলে কি করেছে, গার্লফ্রেন্ড হবে ওর সঙ্গে বেশি ইন্ডালজ হয়েছে। তাই জন্য এখন ওরকম তো ভয়ে ভয়ে এটা সব, গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে তো অত ফ্রিতে কিছু করা যায় না, ভয় থাকে একটু মনে, কেউ দেখে নিবে, ধরা পড়বো, ওই ভয়টা শরীরে থাকে, তাই জন্য এইসব ডিজিজ গুলো হতে যায়। ঠিক আছে? ওইটাই আমরা ভাববো যে কেন এই ডিজিজটা, যেরকম কালকে বললাম যে ওই যে নাক্স, কেন আমি নাক্স দিলাম, না মানে পরশুদিন যে, হ্যাঁ, না মঙ্গলবার, যে আমরা ডিসকাস করেছিলাম যে নাক্স কেন দিব। নাক্স একটা অ্যাম্বিশিয়াস হয়, একটা টার্গেট পুরো হয়ে গেলে নেক্সট টার্গেট সেট করে নিবে, এইটা আমাকে অ্যাচিভ করতে হবে। ওই টার্গেট অ্যাচিভ করতে করতে কি হয়, রেস্ট করে না, আর শরীর খারাপ হয়ে যায়। Why she came to us? Why the disease has come? ঠিক আছে? এই why-টা আমাদের বুঝতে হবে। এই ছেলেটা কেন এরকম হলো? क्यों हो गया इसको ये बीमारी? ये प्रोस्टेट फ्लूइड निकलने लग गया। ये सबको समझना है, क्योंकि ये कहीं न कहीं कुछ ऐसा किया है जहाँ इसको डर लग गया, जहाँ ये डर गया, और डर से डिजीज़ पैदा। स्टमोनियम का डिजीज़ कैसे पैदा होता है? डर से। स्टमोनियम हमेशा डरा हुआ, ठीक है? हमेशा एक एक उसके अंदर ना भय रहता है। कुछ भी देखेगा, अचानक से कोई कुत्ता सामने आ गया, अचानक से कुछ कुछ जानवर, दूसरा जानवर आ गया, वो डर जाएगा। अचानक से कोई आप पीछे से आवाज़ कर दिया, कार का आवाज़ आ गया ज़ोर से, कोई हॉर्न बजा दिया ज़ोर से, एकदम डर जाएगा। ये सारा स्ट्रमोनियम का बीमार होने का कारण है, ठीक है? अभी हम लोग उसको ना एक तो टनल टनल से इसको समझेंगे, एंग्जायटी टनलिंग, ঠিক আছে? এটা আমরা বুঝবো। এটা হয়ে গেল ৩ টা ৪ টা কেস হয়ে গেল। ঠিক আছে? यहाँ पर पेशेंट सोच रही है, ये जो আমি वाइफ এর জন্য বলছি। यहाँ पेशेंट ये सोच रही है कि उसे हुआ कैसे? कारण जानना चाह रही है कि उससे हुआ क्या है? पर समझ नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है? এ বুঝতে পারছে না। জানতে চাচ্ছে যে কি হয়েছে আমার? কেন হয়েছে? কিন্তু বুঝতে পারতেছে না যে কেন হয়েছে? হ্যাঁ, বলেন, বলেন। আবার মাইক অন করে। আসছে না তো। মাইক অন করে। হ্যাঁ, বলেন। একটু আওয়াজটা কম লাগছে স্যার, আওয়াজটা। আচ্ছা, আওয়াজটা কম আছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। আর ওই যেটা স্ট্যামোনিয়ামের ফিয়ারটা বললেন না স্যার, ভয়টা, হ্যাঁ। যেমন পিছন দিক থেকে হ্যাঁ, গাড়িতে কোনো আপনি হর্ন বাজালো, যাচ্ছেন, আপনি মোটরসাইকেলে যাচ্ছেন, সাইকেলে যাচ্ছেন। আর কেউ ফট করে হর্ন দিয়ে দিল। কেমন হয়ে যায়? আর আর মানে একটু চমকে যাওয়া। হ্যাঁ, আচানক ওই তো অ্যাস্টনিশ হয়ে যায়। এই আচানক কি হলো এটা? ঠিক আছে? মানে মানে ওর ভয়টা কত দূর থাকবে এটাই আমি জানতে চাইছি। ফাটাফাট শেষ হয়ে যাবে। যখন দেখবো ওহ! কার ছিল, ট্রাক ছিল। ও ঠিক আছে। ফাট করে শেষ। ওইটাই হচ্ছে ফ্রাইভুলাস নেচার। মানে চমকে যাওয়া। বাস চমকে যাওয়া। হ্যাঁ, ওই যে অ্যাস্টনিশ যে রুব্রিকটা আছে। ঠিক আছে? ও কিরকম বলবে পেশেন্ট? ফার্স্ট টাইম হয়েছে ডাক্তারবাবু এটা। আর কোনদিন হলো না এটা। বাট এইটা আজকেই হলো। ফার্স্ট টাইম হয়েছে আমার। এরকম অবস্থা কোনদিন ছিল না আমার। এইসব হচ্ছে অ্যাস্টনিশ। ঠিক আছে? যখন আমরা জিজ্ঞেস করব ভয় লাগছে? বলে, "না, ভয় কিসের ভয়? ভয় লাগছে না?" ডাক্তারবাবু
ভয় তো হয় না। এই যে কিসের ভয় যাচ্ছে এইটা হলো অ্যাফেক্টেশন। ঠিক আছে? কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই বলে দিবে, "না ডাক্তারবাবু ভয়ের কথা তো হয়ই, এরকম নাই যে ভয় লাগে না।" হ্যাঁ? একদম माइल्ड হয়ে বলবে ওই কথাটা। ठीक है? तो यहाँ पर पेशेंट सोच रही है कि उसे हुआ क्या है? कारण जानना चाह रही है कि उसे हुआ क्या है? पर समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है? বুঝতে পারছে না। এইটাই হচ্ছে গ্রোপিং অ্যাজ ইফ ইন দ্য ডার্ক। ठीक है? जब पेशेंट से पूछा गया कि डर लग रहा है? तो हँस दी। बोले ना, ना डर क्या है? कोई डर क्या है? मतलब ये जो मतलब जैसे आप पेशेंट से बोलेगा भी नहीं कि आपको डर लग रहा है, तो बोलबे ना डॉक्टर साहब ऐसा भी नहीं हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि जस्ट शी विल गिव ए एक जस्ट शी विल गिव ए स्माइल और हँस देगा ऐसे। ঠিক আছে? তো এইটাও affectation ভয়ের কারণ তো আসলো আপনার কাছে। এ হচ্ছে কি কোনো ভয়ের কারণ তো নেই ডাক্তারবাবু। হ্যাঁ? affectation আর hiding himself। ঠিক আছে? यहाँ सारी সিচুয়েশন ডার্ক স্টেট को दिखा रही है। সব সিচুয়েশনটা কি ছিল? কি হইছে? কেন হইছে আমার? হ্যাঁ? কি হয়েছে? কেন হয়েছে আমার? এইসব কথাটা। यहाँ सारा सिचुएशन डार्क स्टेट को दिखा रही है, जो उन्हें पुअर फील करा रही है। হ্যাঁ? এই সিচুয়েশনটা মানে হেল্পলেস হয় কি হয়? পুয়ার হয় স্ট্রাগলিং। আমি আমাকে নিজেকে হেল্প করতে পারছি না। আমার সিচুয়েশনটা খুব খারাপ। আমাকে এখান থেকে বের করেন। ঠিক আছে? এই যে कैरी डिजायर टू बी कैरिड स्ट्रामोनियन अपने नेचर से फ्रीवलेस होता है। ठीक है? स्ट्रामोनियम कैसा होता है? अपने नेचर से फ्रीवलेस होता है। फ्रीवलेस होता है और किसी चीज की चिंता नहीं करता है। यहाँ तक कि जो उसके पास है उसे बढ़ा चढ़ाकर बयान कर। देखिए बार-बार मैं जैसे फ्रीवलेस नेचर और इंडिफरेंस इसको हम लोग समझते रहते हैं बार-बार। इंडिफरेंस में क्या होता है जैसे आप बैठे हैं, मैं कुछ बोल रहा हूँ या आपके सामने कोई पेशेंट बैठा है ना? और उसके साथ जो पेरेंट्स आए हैं या जो उसके साथ उसको लेके आए, वो आपसे कुछ बोलना चाह रहा है और आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है? तो ये सिचुएशन जब वो बोले जा रहा है लेकिन आपका क्या करना है? आपको तो पेशेंट का जानकारी लेना है, पेशेंट से बात करना है, लेकिन उसके साथ जो उसको लेके आया है, उसके मदर-फादर आए हैं, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं और बोले भी जा रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? उसको थोड़ा-सा ध्यान नहीं दे रहे हैं उसकी तरफ, जबकि वो आपके सामने बैठा है, फिर भी आप उसको ध्यान नहीं दे रहे, है ना? आपका ध्यान कहाँ है? आपके पेशेंट पे। ठीक? तो आप क्या कर रहे हैं? इंडिफरेंस टुवर्ड्स दैट पीपल जो बोल भी रहा है, लेकिन आप उसकी बातों का ध्यान नहीं दे। वो आपके सामने है। इसी तरह से एक सिचुएशन आपके सामने है कि आपको कुछ तकलीफ है, लेकिन आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। थोड़ा-सा उसमें से थोड़ा नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है? उसी तरह से फ्रीवलेस नेचर क्या है? नेचर होता है जो किसी चीज़ की चिंता नहीं करता है। ठीक है? वो आप इंडिफरेंस में क्या होता है, आपके सामने सिचुएशन है, आपके सामने वो आदमी है, लेकिन आप उस पे ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है? उसकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे, यही होता है। आपके सामने इंडिफरेंस में थोड़ा-सा ध्यान नहीं देना मतलब थोड़ा-सा नेग्लेक्ट, सिचुएशन को जान रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन उसको थोड़ा-सा नेग्लेक्ट करना। लेकिन फ्रीवलेस में क्या होता है, वो किसी चीज़ का चिंता ही नहीं करता है, उसको चिंता ही नहीं है कि क्या हो रहा है मेरे ठीक है? तो ऐसे समझना। यहाँ तक कि उस जो उसके पास है उसको बढ़ा-चढ़ा के बोलना। स्टमोनियम का पेशेंट ना ज़्यादा उसके पास नॉलेज नहीं है। वो एक ही सिचुएशन को ना बार-बार आपके सामने रिपीट करेगा। मैंने ये किया था, वो किया था, मेरे से ऐसा हो गया, मैं वहाँ गया था,
और नदी पार कर गया ऐसे तैर के, इतना पानी था नदी में फिर भी मैं पार। उसी सिचुएशन को आपको जब भी मिलेगा ना, उसको बार बार बोले, ठीक है। इससे भी आप स्ट्रमोनियम दे सकते हैं। इतना फ्रीबुलस और बूस्टिंग करता रहता है, अपनी बड़ाई करता रहता है, भले ही उतना उसने नहीं किया, वही एफेक्टेशन है उसका, अपनी बड़ाई कर। मैं नदी में अकेला ही कूद के चला गया, तैर के आ गया, इतना बड़ा नदी था, पूरा हमने पार कर लिया उसको। ऐसा क्यों? मैं जब रास्ते में जा रहा था, देखा कि कुछ गलत तो एक ही सिचुएशन उसके पास रहता है। कोई उसने जो काम किया है छोटा सा, उसको बढ़ा चढ़ा के बार बार सबको सुना, ठीक है। ये होता है बूस्टिंग, बढ़ा चढ़ा कर बैंड करना। फ्रीबुलस बूस्टर जो होता है, जैसे बेलाडोना में होता है। तो बेलाडोना किसका वेप है? ये अपने अचीवमेंट का नहीं बता, ये अपने अचीवमेंट के बारे में बताएगा, या उसको एक्स्ट्रा बढ़ा बढ़ा के बात करेगा कि मैंने ये किया था, वो किया था, मैं डरा नहीं हूँ वहां पे, किसी से मेरे को डर नहीं लगता है, मैं सीधा जाके उससे लड़ गया, इस तरह का बात करेगा। लेकिन एक ही चीज है उसके पास अपने लाइफ में बताने के लिए, ठीक है। तो टॉकिंग प्लेजर इन हिज ओन टॉक, वो अपनी बात बताने में उसको बड़ा मजा, ठीक है। और उस बीच में वो किसी को टॉक्स वन सब्जेक्ट ऑफ नथिंग बट टॉकिंग प्लेजर। ये रूब्रिक तो देखो, ये दोनों रूब्रिक कनेक्ट करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि स्टमोनियम का नेचर क्या हो। वहां से भी आप चुपचाप स्टमोनियम दे सकते, कुछ नहीं सोचो। टॉकिंग प्लेजर इन हिज ओन, तो देखे ना, टॉकिंग, टॉकिंग में जाइए, टॉकिंग में जाइए, प्लेजर, टॉकिंग प्लेजर इन हिज ओन। केशव, टॉक्स वन सब्जेक्ट ऑफ नथिंग बट, ये दूटा रूब्रिक, ये दोनों को आप एक जगह रख के सोचिए कैसे होगा ये इसका मतलब क्या है। तो ये होता है स्ट्रामोनियम। ये दो रूब्रिक आप लिख लीजिए और इसको समझने का कोशिश, मैं बताता हूँ कैसे कैसे टॉकिंग प्लीजर इन हिज ओन, इसको थोड़ा सा हम लोग को समझना है बस, और उसके बाद हमें स्ट्रामोनियम का नेचर समझ में आ जाए। इसीलिए बहुत से लोग ऐसे है ना, जिसको मैं इस तरह की बातें करते रहते हैं, अपने अचीवमेंट के बारे में बताते रहते हैं, और उस बीच में वो नहीं चाहते हैं कि कोई उसमें इंटरफेयर करे, मेरे को पहले पूरा बोल लेने दो। ये दो दो रूब्रिक है, क्या है? टॉकिंग प्लेजर, मजा आता है, खुश होता है। प्लेजर माने शांति देता है उसको अपनी बात करने, जो उसने किया है, अचीव किया है। और टॉकिंग वन सब्जेक्ट ऑफ नथिंग बट, एक ही सिचुएशन है उसके पास बताने के लिए, और उसी में बता बता के वो खुश होता रहता है, शांति मिलता है उसको। जब तक वो बता नहीं देता है, तब तक चुप नहीं होता है, ठीक है। ये दोनों रूब्रिक समझ में आ रहा है? बोलो। Talking pleasure in his own, and why he is talking pleasure, why he is getting pleasure? Because talks one subject of nothing but what he has achieved, what he has done, उसको वो बताना चाहता है आपके पास कि नहीं, मेरे पास भी नॉलेज है, मैं भी अपना नॉलेज शेयर करूंगा आपके साथ, ठीक है ना। एक ही सब्जेक्ट है उसके पास, बहुत सारा बहुत ज्यादा दिमाग नहीं है उसका स्टमोनियम पेशेंट, ठीक है ना। हाँ, রুব্রিক দুটা লিখলাম, একটু আর ভার্সনটা শুধু বলে দেন। हाँ, टॉकिंग लिखे नहीं है। यहाँ मतलब জি। ये, यहाँ पर ये दोनों रूब्रिक से मतलब ये है
कि वो अपनी बातों के बीच में दूसरों को बोलने नहीं देना चाहता है। दूसरों को सुनता नहीं है, किसी को बोलने देना नहीं चाहता है। ये फर्क होता है कि मैं दूसरे का सुन लूं, नहीं, वो अपना बात पूरा करना है उसको, भले ही दूसरों को खराब लगता रहे, उसको अच्छा ना लगे अगला बार, जो आदमी और लोग बैठे हुए हैं उसको भले ही अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन इसको अपनी बात रखनी है, बोलना ही है, जबरदस्ती बोलना है। ठीक है, तो दूसरों को बोलने नहीं देना चाहता है, आगे की असर, अगले अगले की बात सुनने की इच्छा नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए, अब दो सिचुएशन है, आप बात, मैं बोले जा रहा हूँ, बीच में अगर आप कुछ बोलेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ना बोलने दिया जाए। ठीक है ना, मैं अपना बात पहले पूरा कर लूं, फिर तुम बोलना, फिर मैं सुन लूंगा तुम्हारा बात। हाँ, तो मतलब उसके प्रति उतना ध्यान नहीं है कि भाई इसका भी ध्यान रखना है कि ये भी बोलना चाहता है कुछ, तो मैं चुप हो जाऊं, नहीं। तो यही ये दो रूब्रिक बताता है। टॉकिंग प्लेजर, उसको अपनी बात करने में बहुत मजा आता है, अच्छा लगता है, शांति मिलता है, और क्या, एक ही सब्जेक्ट है उसके पास, कोई एक जो उसने छोटा सा अचीवमेंट किया है उसके बारे में पढ़ा चढ़ा के बोल। ये आप याद करिए, हम जब दोस्तों में बैठे रहते थे, या छोटे में थे, स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तो कोई ना कोई इस तरह का, या हम भी करते थे इस तरह से कि हमने आज ये किया, आज हम वहां पे गए थे खेलने के लिए, 2 गोल मारा, हाँ, और सबको कटाता हुआ, कैरी करता हुआ, मैं सब 2 3 4 5 लोगों को काटता हुआ गोल करके आया। तो ये क्या है, अपनी बात बोलना है स्कूल में हम लोग को, या कॉलेज में हम लोग को बताना है, क्योंकि हमें दिखाना है, हमें अच्छा लगता है, प्लेजर, टॉकिंग प्लेजर इन हिज ओन टॉक। ठीक है सर, हर टॉकिंग टॉक्स वन सब्जेक्ट ऑफ नथिंग बट একটাই যে অ্যাচিভমেন্ট হয়েছে ওটা 2 3 দিন বলতে থাকবে, আর পরেও বলতে থাকবে, 1 মাস পর, এক বছর পর, ওই ওই আমি করেছিলাম, ওটা আমাকে শুনে নাও, দেখো আমার নলেজ কত আছে। হ্যাঁ, এখন কোনো ডিসকাশন চলতেছে, যারা আমি এরকম পেশেন্ট ছিল, আমরা ডক্টর লোক, আমরা যেরকম কথা বলবো, এই পেশেন্ট ছিল, ওকে আমি এই ওষুধটা দিয়েছি, ও ঠিক হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তাহলে যে স্ট্রমোনিয়াম পেশেন্ট হবে, যে স্ট্রমোনিয়াম নেচারের ডাক্তার হবে, ও ওই একটা কেস, কোনো বড় কেস পড়বে, ওই আমার একটা এরকম একদম ইয়ে হয়ে গেছে পেশেন্ট, পেশাব হচ্ছিল না, পায়খানা হচ্ছিল না, আমি 1 ডোজ ওষুধ দিলাম, ঠিক হয়ে গেছে। আর দেখো কিরকম করছিল, এই ওই, মানে খুব এক্সট্রাভাগেন্স, মানে এক্সট্রাভাগেন্স করে, খুব বাড়িয়ে চাড়িয়ে বলে। তাই জন্য এই, মানে এই रूब्रिक एक्स्ट्रावेगेंस टेस्टिमोनियम से আসে। तो अपना डिजीज के बारे में ना वो खूब बड़ा चढ़ा के बात, ठीक है? तो इसलिए ये सब रूब्रिक जो है ना हम लोग को ये जो मेडिसिन है, उसके बीच-बीच में हम लोग थोड़ा-थोड़ा सीखते जाएँगे कि क्या एक्चुअल में क्या है इसके, क्यों यहाँ पे ये फिट हो जाए। ठीक है सर? इच्छा नहीं होती, क्योंकि उस समय जब वो बोल रही होती है, तो किसी का बीच में रुकावट उसके प्रेजेंट मूड को स्पॉइल कर सकता है। इसीलिए वो पूरा बात करना चाहते हैं। बीच में अगर कोई बोला भी ना, तो वो ये अपना चालू रहेगा, ये पेशेंट, स्ट्रॉन्गियम का पेशेंट, वो नहीं रुकने वाला। क्योंकि उससे क्या होता है, उसको थोड़ा-सा, जैसे कोई बोलने लगता है या बीच में अगर उसको रुकना पड़े, तो थोड़ा-सा उसको दुःख होता है ना? उसको अच्छा नहीं लगा, मूड जो है ना ऑफ हो जाता है। दुःख नहीं होता है, मूड ऑफ हो जाता है, अरे यार! मैं बोल रहा था ये जो। फिर क्या होगा, वो थोड़ा-सा ना आपसे इंडिफरेंस होगा। आप वहीं पे बैठे हैं, लेकिन आपकी तरफ ध्यान देना छोड़ देगा। ठीक है? ये रोज़मर्रा की तकलीफ, रूटीन को लेकर ज़्यादा परेशान या चिंता नहीं करता है। जो रूटीन है डेली का, उसको लेके ज़्यादा परेशान और चिंता नहीं करता है। বেশি চিন্তা করে না, আর বেশি परेशान হয় না। उसे चिंता नहीं करती है, उसे लगता है ये सब तो होते ही रहते हैं। जैसे सर्दी हो गया, या पैर में थोड़ा-सा उँगली में जल गया, हाँ? खाना बनाते समय जल गया या पैर में चोट लग गया,
तो ये इस पे उतना ध्यान नहीं देगा, बोलेगा अरे ये सब तो रोज होता ही रहता है। तो ये कैसे होता रहता है? तो और समय सीमा में ठीक हो जाता है। मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए खाना बनाते समय थोड़ा हाथ लग गया, कुकर में लग गया, है ना, जल गया, तो आप बोलेंगे अरे यार जल गया तेरा। अरे ये सब तो होता ही रहता है ना? ये अपने आप 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। पर जब 2-3 दिन में ठीक नहीं होता है और सिचुएशन बिगड़ने लगता है, उसमें पस हो जाता है, दर्द होने लगता है, घाव हो जाता है ना? तब क्या होता है? समय के साथ ठीक हो जाते हैं, पर जब समय सीमा में वो बीमारी ठीक नहीं होती है, तब यह बीमारी है क्या? उसकी समझ में नहीं आता है कि यह बीमारी है क्या? जब समय सीमा में वो ठीक नहीं होता है और उसको लगता है कि ये बीमारी है क्या, तब उसको घबराहट शुरू होती है। ठीक है? जैसे कोई भी लेडी, आप खाना बनाते समय उँगली जल गया, बोलेंगे यार जल गया, इसको लगा लो कुछ, बोनॉल लगा लो या कुछ दवा ले लो। अरे नहीं ठीक हो जाता है। ये तो होता ही रहता है, रोज-रोज तो यही काम है हमारा, होता ही रहता है। पेशेंट आके ऐसे बोलेगा, लेकिन जब देखेगा कि 3 दिन हो जैसे 2-3 दिन में ठीक हो जाता है, काम करते-करते आदमी भूल जाता है। लेकिन जब वो सिचुएशन बिगड़ने लगता है, 3-4 दिन में ठीक नहीं हुआ, तब उसको शुरू होता है, चिंता शुरू होता है, एंग्ज़ायटी पहले शुरू होता है। ये हुआ क्या है यार? क्यों ঠিক नहीं हो रहा है? ঠিক আছে? এইরকম কথাটা মনে আসবে। তো স্যার, হ্যাঁ, ওই একটু আগে হ্যাঁ, বলেছিলেন যে स्टेमोडियम के पास उतना नॉलेज नहीं होता है, लेकिन बढ़ा चढ़ा के दिखाता है, बोलता है। হ্যাঁ, हम्म, मैंने ऐसा कर दिया, वैसा किया, गंगा पार किया था एक बार। हाँ। तो এটা অ্যাফেক্টেশন না বুস্টিং? অ্যাফেক্টেশন কে সঙ্গে, সঙ্গে বুস্টিং। ও ঠিক আছে? আচ্ছা। বুস্টিং মানে নিজের কথাটা বলা, বাড়িয়ে চাড়িয়ে। ঠিক আছে? যে আমি কোনো ভয় করলাম না, নিজে একা, একা পার করে গেলাম। কিন্তু মনের তো ভয় ছিলই। ডাকছিল লোককে কি চলো আসো আমার কাছে আসো, চলো আমরা একা তো যাব না। হ্যাঁ? আমি আগে, আগে চলে গেলাম। এরকম কথাটা। तो वो उसकी समझ में नहीं आता कि ये बीमारी है क्या? तब इसकी चिंता या ध्यान होता है कि ये बीमारी शरीर में कुछ गड़बड़ी कर रही है। तो 2-3 दिन में ठीक नहीं हुआ, जो नॉर्मल ठीक हो जाता था, सर्दी ही है, 2-3 दिन में ठीक हो जाता है, सर्दी लग गया 3 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन जब सर्दी बढ़ने लगता है और ठीक नहीं होता और उसके कारण से सर दर्द, कान दर्द और भी कुछ-कुछ उससे रिलेटेड डिज़ीज़ शुरू हो जाते हैं, तकलीफ शुरू हो जाती है, तब इसको समझ में आता है कि अरे! ये हुआ क्या? क्या हो गया मेरे को? और जो आगे जाकर शरीर में कुछ गड़बड़ी कर रही है, जो आगे जाकर बड़ी तकलीफ में बदल सकती है। ठीक है? तब यहाँ से इसको तकलीफ होना वही है। तब स्ट्रामोनियम पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है। इंडिफरेंस, हाँ, apathy, suffering to indifference, suffering to, হ্যাঁ? ১-২ দিন মধ্যে ঠিক হয়ে যায় ডাক্তারবাবু। কি করব? কিছু মানে ভাবি যে আরে এটা তো আমাদের ডেইলি কাজ। হাত জ্বলবেই, হ্যাঁ? হাত জ্বলে যায়, কোনদিন কেটে যায় আঙুলটা, আ সবজি কাটতে কেটে যায়। তো indifference to suffering আর anxiety stranger in the presence of, এটা কি হয়েছে? এ তো ঠিক হয়ে যেত, এখন ঠিক হচ্ছে না। পুঁজ বেরোচ্ছে, ব্যথা করতেছে, ফুলে গেছে, এইসব কথা। এটা হচ্ছে anxiety stranger in the presence of and light desire for, এটা কি হচ্ছে ডাক্তারবাবু? কেন ঠিক হলো না? আমার তো ২-৩ দিন মধ্যে ঠিক হয়ে যায়। এখন তো এটা এরকম দেখেন না, এরকম হয়ে গেছে, ফুলে গেছে, ব্যথাও করতেছে। এখন তো ডাক্তারবাবু কিছু হয়েছে নাকি? এটা কিছু হয়ে গেছে নাকি আমার? কোন খারাপ তো নাই? কিছু খারাপ তো হবে না এটা? এরকম কথাটা এসে বলবে। अब जब बीमारी एक तय समय में खत्म नहीं हुई, যখন একটা ফিক্স ওরা এই থাকে যে এই ২-৩ দিন মধ্যে ৪ দিন মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে। জ্বলেছে, কেটেছে ঠিক হয়ে যায়। বারবার এরকম হয়, ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু যখন এইটা টাইম লিমিটটা ক্রস করে গেল,
समय सीमा में खत्म नहीं हुई, वह स्थिति उसके लिए स्ट्रेंज पोजिशन, स्ट्रेंज सिचुएशन हो जाता है। तो ফিক্সড টাইমে যদি ঠিক না হয় তাহলে ওই সিচুয়েশনটা কি হলো, স্ট্রেঞ্জ সিচুয়েশন হয়ে গেল। যেরকম ওই মহিলাকে বলছি, মানে যখন ওই ওই যে গালব্লাডার স্টোন, আর না এই ছেলে, ওর জন্য কি ছিল যে প্রোস্টেট ফ্লুইডটা বেরোচ্ছিল, ওইটা ওইটা নিয়ে কত কত চিন্তায় ছিল। ও बोलो कि सर ऐसा तो कभी हुआ नहीं, ये ऐसा तो कभी नहीं होता था सर, ये सब पहली बार हो गया। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, स्ट्रेंज सिचुएशन है ना, उसको पता नहीं है कि ये चीज क्या है। पहले से हुआ रहता तो बोलते सर पहले भी हुआ था, इस तरह से होता है, तो दवाई लिया था तो ठीक हो गया था, इस बार ठीक नहीं हो रहा। ये अगर उसको पहले से हुआ होता तो वो इस ढंग से बात करता, लेकिन इसको फर्स्ट टाइम हुआ, तो उसके लिए क्या है, स्ट्रेंज सिचुएशन। तो वही चीज है कि ये काम तो डेली डेली रोजमर्रा का काम है, डेली डेली होता ही रहता है, हाँ चलना कटना। लेकिन इस बार जब 2-3 दिन में उसका ठीक नहीं हुआ तब उसको समझ में आया, पहले तो इंडिफरेंस टू सफरिंग है, फिर जब एंजाइटी स्ट्रेंजर इन द प्रेजेंस ऑफ, ये स्ट्रेंज सिचुएशन आ गया उसके लिए। अब उसके समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है, तो डॉक्टर के पास जाना कि डॉक्टर साहब ये क्या हो गया, इसका दवाई दे दीजिए मेरे को। तो यही है, लाइक डिजायर फॉर एंड कैरी डिजायर टू बी कैरिड। स्ट्रेंज परिस्थिति उसकी समझ से परे हो जाता है, मतलब उसके थिंकिंग से आउट ऑफ थिंकिंग चला जाता है, और यही उसके लिए डार्क सिचुएशन है। जब उस स्ट्रेंज सिचुएशन में पढ़ के और उसके बारे में उसको समझ में नहीं आता है कि ये स्ट्रेंज सिचुएशन है क्या। ठीक है ना, अब जैसे उस लड़के का, मेरी वाइफ का, रात में जो दर्द होने लगा, सांस रुकने लगा, तो क्या हुआ, स्ट्रेंज सिचुएशन हो गया ना। अब डर आना शुरू हो गया, स्ट्रेंज सिचुएशन पहले आता है, इसीलिए स्ट्रेंज सिचुएशन आके क्या होता है, डर जाता है, एस्टॉनिश हो जाता है, ये क्या हुआ, ऐसा आंख खुल जाता है, बड़ा सा आंख करके, ये वो क्या रहा है मेरे साथ। ठीक है ना, और फिर जैसे जैसे वो सिचुएशन और आगे बढ़ता जाता है, स्ट्रेंज सिचुएशन, तब आपको डर लगना शुरू हो, तो ये फियर डार्क सिचुएशन। ठीक है, जो उसे डर लगता है, तो एंजाइटी डार्क इन, ग्रोपिंग एज इफ इन द डार्क, फियर डार्क ऑफ, एंजाइटी स्ट्रेंजर इन द प्रेजेंस ऑफ, फियर स्ट्रेंजर ऑफ, डार्कनेस एग्रावेट, वीपिंग डार्क इन। ठीक है, जो मैं पहले आप लोग को बता रहा हूँ, ये उसके सब रूब्रिक है, ये सारा रूब्रिक उसके लिए क्या क्या है, एंजाइटी डार्क इन। मतलब अब जब ये ठीक नहीं हो रहा 2-3 दिन में, तो क्या हुआ, एक डार्क सिचुएशन आ गया, घबराहट शुरू हो गया, पता नहीं लग रहा है क्या है। तो पहले घबराहट शुरू हुआ, स्ट्रेंज सिचुएशन में आके हम लोग क्या होता है, घबराने लगते हैं पहले, फिर सोचते हैं कि भाई करना क्या है मेरे को, इस सिचुएशन से निकलना क्या है, तो ग्रोपिंग द डार्क। ठीक, हर फियर डार्क ऑफ, जब वो सब कुछ करने के बाद नहीं ठीक हो रहे हैं, तब घबराहट, डर लगना शुरू हो जाता है कि अरे हो क्या, मतलब अब डर लगने लग गया, मतलब अब समझ में नहीं आया कि मेरे को एक्चुअल में है क्या, डार्क वाले सिचुएशन, तो डर आ गया, एंजाइटी इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंजर, फियर स्ट्रेंजर ऑफ। अब ये जो सिचुएशन आ गया, ये इसके लिए क्या है, स्ट्रेंज सिचुएशन, मेरी वाइफ के लिए स्ट्रेंज सिचुएशन है, इस लड़के के लिए, तब वो स्ट्रेंज से डरना शुरू हो गया। पहले एंजाइटी होता है, फिर जब वो एंजाइटी क्लियर नहीं होता है, तो डार्क सिचुएशन आ जाता है और डर आ जाता है, डार्कनेस एग्रावेट और वीपिंग डार्क, सब क्या हो गया मेरे को, पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था। तो ये लेडी जो एक 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 रिक्शा वाला है, उसके 2 बच्चे हैं, और रिक्शा चलाता है, अपना काम करता है, उसको इसका भी पेन हुआ होगा, तो वो जाके अल्ट्रासाउंड किया और बोला कि सर तो मेरा गॉलब्लैडर स्टोन है, और डॉक्टर बोला है कि इसका जल्दी से ऑपरेशन कर लो, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा तो तुम्हारा तकलीफ हो जाएगा। तो ये जो वीपिंग डार्क इन, ठीक है, तो मेरे पास आके बोला डॉक्टर साहब, अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, और उसको ना
आंसू जैसा आंख से आंसू आ गया। तो वो क्या है, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, कोई नहीं है देखने वाला, मैं ही हूँ देखने वाला। तो वीपिंग ये की सिचुएशन क्या हुआ, डार्क सिचुएशन आ जाएगा, बच्चों के जीवन में डार्कनेस आ जाएगा, अनाथ हो जाएंगे। वो डार्क सिचुएशन को सोच के रोने लगे। ठीक है, तो ये एक केस था। वो रिक्शा वाला, उसका गाल ब्लडर में स्टोन हो गया, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करो, नहीं तो तुम्हारा कभी भी कुछ हो सकता है। तो रिक्शा वाला पैसा कहाँ से लाएगा बेचारा ऑपरेशन कराने के लिए, तो मेरे पास आया। और ठीक है, अभी भी वो कभी भी रिक्शा चला रहा है, मिलता रहता है। ये करीब आपको 18-19 साल पहले का बात। तो ये जो रोने वाला कंडीशन है, उसको आगे भविष्य क्या दिख रहा है कि मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मतलब अंधकार में चले जाएंगे। तो ये अपना सिचुएशन को सोच रहा है, वीपिंग डार्क। ठीक है, यह दो रूब्रिक है जो इसके घबराहट को सही साबित कर। কি কি রুব্রিক দুটো স্যার আমার ছুটে গেছিল মাঝখানে। বলছি তো তারা, ওই রুব্রিকটা বলছি। হ্যাঁ, এখন ওইটা ये रूब्रिक, ये दूटा रूब्रिक एक स्ट्रेंजर, मतलब ये स्ट्रामोनियम का ना, आप समझिए कि किंग पिन है। डिलीरियम क्राइंग फॉर हेल्प जो है, ये सिचुएशन ड्राइंग डिलीरियम क्राइंग फॉर हेल्प बनता कैसे है, कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, ये दो रूब्रिक से आपको समझ में आ जाएगा, तो फिर आपको स्ट्रामोनियम को समझने में ना कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहले क्या है, एंजाइटी टनल, गुफा होता है ना, टनल, पहाड़ में गुफा होता है ना, एंजाइटी टनल। फिर एंजाइटी टनल, ट्रेन इज इन ए टनल व्हेन। ठीक है, टनल का सिचुएशन कैसा होता है, तो थोड़ा सा इमेजिन करिए, हम आप अपने आप सामने में इमेजिन करिए। टनल में क्या होता है, जब हम घुसते हैं टनल में, तो क्या होता है, पीछे लाइट रहता है, पीछे से लाइट आ रहा है ना, जब हम टनल में जा रहे हैं अंदर, तो पीछे से लाइट आता है, तो डर नहीं लगता है, क्योंकि अभी आपके पास लाइट है। ठीक है, फिर जैसे धीरे धीरे आप अंदर की तरफ बढ़ते हैं, अंदर तो डार्क है ना। ठीक है, अंदर में क्या है, देखिए यहाँ पर टनल का मतलब ही है अननोन सिचुएशन, है ना। टनल के अंदर क्या होगा, अंधेरा रहता है, और अंदर में क्या क्या होगा आपको नहीं पता है। स्ट्रेंज सिचुएशन आज के लिए, आपके लिए अननोन सिचुएशन है। शुरू में तो वो रिलैक्स रहता है, क्योंकि स्टार्टिंग में लाइट होती है, पीछे से लाइट आ रहा है, शुरू में वो क्या रहता है, रिलैक्स रहता है, यार लाइट है ना, चल अंदर घुसते हैं। ठीक है, और सोचता है कि आगे भी तुरंत टनल खत्म हो जाएगा तो लाइट आ जाएगा, है ना। ठीक है, वही आप इसके बीमारी से भी रिलेट करिए कि अरे यार ये तो कटा है ना, रोज तो होता ही रहता है। ठीक है, लेकिन वो जैसे जैसे अंदर घुस रहा है टनल में, है ना, और अंधेरा बढ़ता जा रहा है, और टनल का दूसरा मुंह नहीं दिख रहा है, तब इसके पीछे से जब लाइट कम होना शुरू हो जाता है, जो रिलैक्स सिचुएशन था, लाइट में खत्म होने एकदम से, थोड़ा थोड़ा होते 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 जब आप अंदर बढ़ते चले जाएंगे, तो क्या होगा, लाइट एकदम से खत्म हो जाएगा। ठीक है, और सोचता है कि आगे भी तुरंत टनल खत्म हो जाएगी तो लाइट दिख जाएगा। पर जैसे जैसे सुरंग लंबा होता जाता है और अंधकार बढ़ती जाती है, और पीछे की लाइट भी खत्म हो जाती है, ठीक है, पीछे से जो लाइट आ रहा था वो भी खत्म होने लग जाएगा, तब इसे अंधेरे में डर लगने लगता है। तब जो अंधेरा होता है, वहां पे इसको डर शुरू होता है, क्योंकि इसको हमेशा फियर, यही सिचुएशन है हर बीमारी के साथ। जब तक इसको लगता है कि नहीं यार ठीक ही है, ये सब तो होता ही रहता है, तो फ्रिवुलस नेचर के कारण उसको नेग्लेक्ट करता रहता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो सिचुएशन वर्स्ट होता जाता है, खराब होता जाता है ना, तब इसको डार्क लगने लगता है।
फिर डाका कि अरे यार कहीं ये आगे चल के कुछ खराब तो नहीं हो जाएगा। जैसे टनल में घुसते हैं, लाइट आता रहता है तो कोई डर नहीं है, और जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाते हैं लाइट खत्म होने लगता है। और आप ये सोच के अंदर घुसते हैं कि अरे चलो तुरंत तो दूसरा मुँह आ जाएगा। लेकिन अगर वो टनल लंबा है ना? ठीक है? उसी तरह से ट्रेन, ट्रेन जब घुसती है कोई भी टनल में, बड़ा टनल है तो ट्रेन के लिए बड़ा-बड़ा टनल होता है। तब वही सिचुएशन होता है कि अंधेरा जैसे-जैसे लाइट खत्म होता जाता है और अंधेरा बढ़ता जाता है और आगे की तरफ लाइट नहीं दिखता है, तब डर शुरू हो जाता है कि वो अंधेरा में फँस गया। वही चीज़ है कि मेरी बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रही है? इसको आप अपने इसको स्टामोनियम के उसकी सिचुएशन से रिलेट करना है कि जब तक उसको ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हो रहा था, वो ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे-जैसे उसका वो सिचुएशन, वो बीमारी आगे बढ़ रहा है और इसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि ये 2-3 दिन में ठीक नहीं हुआ। ठीक है? तब स्ट्रेन सिचुएशन आ गया और स्ट्रेन सिचुएशन आगे बढ़ते-बढ़ते डार्क सिचुएशन आ गया और उसको फ़ियर में डाल दिया। तो यहाँ वही है टनल का मतलब कि आप पीछे से घुस रहे, लाइट है और जैसे-जैसे आप अंदर जा रहे हैं, आपने तो सोचा कि अरे यार फटाक से आगे का भी मुँह आ जाएगा, निकल जाएँगे, लाइट दिख जाएगा। लेकिन जब वो लाइट नहीं दिखता है, मतलब वो खुशी नहीं मिलती, जब आपका बीमारी ठीक नहीं होता है, तब आप में डर शुरू हो जाता है। यही इस मतलब ये 2 रूब्रिक का मतलब है, एंग्ज़ायटी टनल और एंग्ज़ायटी टनल, ट्रेन इज़ इन ए टनल व्हेन जब टनल में घुस जाती है ट्रेन और आगे नहीं दिखता है लाइट, तब डर शुरू होता है, अरे यार कहीं का गाड़ी ट्रेन इसी में फँस तो नहीं जाएगी, इसी में रुक गया तो कहाँ जाएँ? ठीक है ना? तो वही आपका बीमारी के साथ है, मैं इस सिचुएशन में फँस गया तो कहाँ जाऊँगा? और रात में वो भी कौन ठीक करेगा मेरे को? कौन डॉक्टर मिलेगा अभी रात में? ठीक है ना? लाइट खत्म हो जाती है और अंधेरे में चलने में ज़्यादा समय लगने लगता है, तब इसे अंधेरे से डर लगने लगता है। तो अंधेरा वाला सिचुएशन में ज़्यादा समय लगने लगता है, अगला मुख नहीं दिखता है, तब डर शुरू होता है और चिंता शुरू हो जाती है। अब वो परिस्थिति जो उसके लिए अननोन है और स्ट्रेंज है, उसके फ्राइवलेस नेचर एटीट्यूड को पीछे छोड़ देता है और उसको पुअर फ़ील कराता है। तब उसका जो ये डर होता है ना अंधेरे का, यही उसका पुअर सिचुएशन है। बीमारी के बारे में जब जानकारी नहीं होने लगती है और तकलीफ बढ़ने लगता है, तब उसका कंडीशन क्या होता है? पुअर होता है। ঠিক আছে? চলো। আর আমরা আর আগে করব আগে। অনেক আছে। হ্যাঁ? কালকে এটা শেষ করে নিব। ঠিক আছে? নেক্সট আমরা শেষ করে নেব। এখন 1 মিনিট শেষ। হ্যাঁ, বলেন। একটা কথা। হ্যাঁ, বলেন। আমার কাছে ১-২ টো পেন